Good afternoon, class. In last lecture we have studied about cylindrical coordinate system, and in this lecture we will study about another kind of coordinate system which is most widely used in antenna and electromagnetic field theory, that is the spherical coordinate system. Why it is most widely used? Because mostly when we will consider antenna as a point source, then we will, and a point of observation is very far from that point source, then in that particular case we will consider the spherical coordinate system, because antenna is having a kind of radiation property, and normally that radiation property is having a kind of spherical kind of radiation pattern, or we can easily define it. The radiation pattern we can easily define in terms of spherical coordinate systems. That's why it is most widely used in electromagnetic field theory and antenna system analysis. Now, what is a spherical coordinate system? In Cartesian coordinate system we have seen we are having three axes, x, y and z, whereas in cylindrical coordinate system we have seen that we were having three axes. As rho, that was radius of the cylinder, and it was calculated from z axis. z axis के किसी भी पॉइंट से हम लोग वो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल रिमेन सेम, बिकॉज सिलेंडर में जो रेडियस होता है वो सेम रहता है, ठीक है, थ्रू आउट. फिर फाई वाज द एजीमुथल एंगल दैट वाज calculated in counterclockwise direction from positive x-axis, and then after z was the same. Now the third kind of the system we are going to study is a spherical coordinate system. So how we can draw a sphere? The very important thing and the very basic question is how we can draw the sphere. In the cylinder we are having a radius, and then after we were having an angle which was azimuthal angle. By the help of that azimuthal angle we were making a circle, and then after we given a height. That's how we made the cylinder. Okay, so what we have to do while creating a sphere? A sphere means a ball kind of a structure. Okay, so how we can make a ball or that kind of a structure? Suppose we are having three axes. This axis is x-axis, again this axis is y-axis, and this axis is z-axis. Okay, so if you want to draw a sphere, and if you want to make a kind of hemisphere, or this is a kind of a sphere, you can see that this is a kind of hemisphere we are making. Okay, so अगर इसको देखिए आप, तो हेमिस्फीयर में या बॉल में क्या होता है? अगर बॉल के सेंटर पॉइंट से अगर आप कंसिडर कीजिए तो एक रेडियस होगा, ठीक है. सिलेंडर में वो रेडियस जेड एक्सिस के पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग स्फीयर को कंसिडर करेंगे तो वो रेडियस केवल और केवल ओरिजिन से कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. तो ओरिजिन से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप बॉल के कैलकुलेट करोगे तो वो रेडियस की डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी. मीन्स फ्रॉम एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, अगर आप रेडियस की डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे दैट विल रिमेन सेम. ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आर विल बी रेडियस ऑफ स्फीयर. ओके, आर विल बी रेडियस ऑफ स्फीयर. देन अगेन दिस फाई विल बी अगेन एजीमुथल एंगल. वो भी सेम ही होगा, ठीक है. तो अगर हम लोग कोई भी रेडियस ले लिए, ठीक है, अगर एक्स वाई प्लेन में बात करें तो हम लोगों ने क्या किया, कोई रेडियस ले लिया, ठीक है, और उस रेडियस के साथ अगर हम लोग फाई एंगल को रोटेट कर रहे हैं तो इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपका ये जो पूरा का पूरा है ये एंगल आपका 360 तक रोटेट कर जाएगा. मतलब 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270 एंड देन आफ्टर 360. तो इस तरीके से पूरा का पूरा 360 तक रोटेट कर जाएगा. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये एक तरीके से आपको एक सर्किल बनाएगा, ठीक है. लेकिन ये सर्किल आखिरकार, ये प्लेट मान लीजिए अगर बन गई तो ये आखिरकार ये स्फीयर के फॉर्म में कैसे रेप्लिकेट होगा, इसे समझने के लिए तो एजीमुथल एंगल क्या होता है? एजीमुथल एंगल सेम है. आर जो रेडियस है वो चेंज हो गया है. यहाँ पर जो रेडियस था हम लोग जेड एक्सिस से कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर हमेशा हम रेडियस कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं? ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो फाई है दैट वाज सेम, ठीक है. बस यहाँ पर एक चीज़ ये चेंज हो रही है कि अब की बार ये कोनिकल एंगल बन रहा है.
कोन बन रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और जेड एक्सिस में अगर यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस है, तो इस एक्स वाई प्लेन में अगर हम लोग यहाँ पर कोन बनाते जाएंगे, एक कोन मान लीजिए आर रेडियस का ये था, ठीक है ना, फिर यहाँ पर इस तरीके से अगर आप कोन का एंगल बढ़ाते जाइए, और कोन का एंगल ऑब्वियसली दोनों साइड बढ़ेगा, अगर 10 डिग्री इधर बढ़ेगा तो दूसरे साइड भी 10 डिग्री बढ़ेगा, 20 डिग्री दूसरे साइड तो 20 डिग्री दूसरे साइड, ऐसे ही 45 डिग्री दूसरे साइड तो 45 डिग्री भी दूसरे साइड, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जेड एक्सिस के अराउंड एक तरीके से 90 डिग्री पे इस तरीके से हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री पे ये पूरा का पूरा एक तरीके से जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग वो एक तरीके से हेमिस्फीयर बना देगा, ठीक है। तो अगर एक प्लेट है और प्लेट में अगर हम लोग उस प्लेट में एक और एंगल जोड़ दे रहे हैं, जो हम लोगों ने आर और फाई के जरिए हमने जो प्लेट कैलकुलेट की, आर मतलब एक रेडियस हम लोगों ने कंसिडर कर दिया और फाई की वैल्यू को हमने जब 0 से लेकर के 2 पाई तक वेरी किया, तो जो हमें प्लेट मिली उस प्लेट को जब हमने थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट वाज कोनिकल एंगल। अब उस प्लेट को आप ले लीजिए, कोई भी प्लेट ले लीजिए, और प्लेट को जब आप ओपन करोगे, जब प्लेट को आप ओपन करोगे, ठीक है, प्लेट है, प्लेट को आप पहले ऐसे मान लीजिए आपके पास प्लेट है, ठीक है ना, और इस प्लेट को सबसे पहले आप जेड एक्सिस पर ऐसे रखिए, ठीक है ना, दोनों का दोनों, ये प्लेट आपके पास मान लीजिए आ गई इस तरीके से, ये आपको एक प्लेट मिल गई एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। अब एक्स वाई एक्सिस पे आपको एक प्लेट मिल गई, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपको एक प्लेट मिल गई, ठीक है ना। अब इस एक्स वाई एक्सिस पे आप क्या कर रहे हो कि ऐसा कर रहे हो कि ऐसा है, ठीक है, अब मैं इसे चपटा कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोन के फॉर्म में इस प्लेट से मैं कोन फॉर्म कर रहा हूँ। तो कोन कैसे फॉर्म होता है, कोन देखिए इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक। और इस कोन को मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोन में मान लीजिए अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तब तो इस तरीके से एक लाइन हो जाएगा, लेकिन अगर कोन के इस एंगल को मैं अगर एक्सपेंड करता जाऊँगा, इस एंगल को मैं धीरे धीरे एक्सपेंड करता जाऊँगा, तो इस तरीके से कोन जो है वो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जब ये 180 डिग्री होगा तो ये पूरा का पूरा स्फीयर बना लेगा, ठीक है। और इसी तरीके से फिर अगर मैं इसे उल्टे डायरेक्शन में भी बैठाऊंगा तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्फीयर बना लेगा। मतलब ये जो आपको एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, ये एक्स वाई एक्सिस ये है आपका, ये अगर इस पॉइंट P को अगर मुझे लोकेट करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P को, तो एक तो मैंने रेडियस ले लिया, ठीक है ना, फिर उसका मैंने इम्प्रेशन देखा एक्स वाई एक्सिस पर क्या है, तो उस रेडियस के हिसाब से जो इम्प्रेशन आएगा एक्स वाई एक्सिस पर, उससे मैंने उस पर्टिकुलर लाइन से मैंने यहाँ पर फाई एंगल कैलकुलेट किया एक्स वाई एक्सिस पर, तो ये बनाएगा आपका एजीमुथल एंगल। और थीटा मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो कोन जो एंगल बना रहा है, दैट विल बी कॉल्ड थीटा, एंड थीटा विल बी कॉल्ड एज पोलर एंगल, ठीक है, थीटा विल बी कॉल्ड एज पोलर एंगल, ठीक। तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका R is radius of sphere, R is radius of sphere, ठीक है। और कैलकुलेट कहाँ किया जाता है, कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिन, कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है फाई इज एजीमुथल एंगल, एजीमुथल एंगल, और एजीमुथल एंगल जो होता है वो कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इनफाइनाइट हो सकती है, या फिर लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट हो सकती है। वहीं फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, फाई की वैल्यू फिर से आपको मैंने बताया 0 से लेकर के 2 पाई तक रेंज कर सकती है, या फिर आप इसे -पाई से 2 पाई भी कर सकते हैं। और फिर थीटा इज कॉल्ड पोलर एंगल, पोलर एंगल, ठीक है ना। और पोलर एंगल जो होता है वो कहाँ से कैलकुलेट होता है, थीटा जो होता है वो कैलकुलेट होता है 0 से लेकर के 2 पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक, ना कि 2 पाई तक। बिकॉज आपको बताएं तो कोन जो होता है वो कोन अगर आप जेड एक्सिस पर देखोगे तो जेड एक्सिस पर जो कैनोनिकल एंगल होगा, जो कोन के नाते जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। बीच में जो होगा वो 45 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। और फिर वापस जेड एक्सिस पर जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से कोनिकल एंगल दोनों साइड में चेंज होता है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अगर किसी पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करना चाहते हैं,
ठीक। तो ये अगर मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर अगर मैं किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहता हूँ तो कैसे बनाते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, इसको देखिए, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक आपको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है ना, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ठीक है। और किसी पॉइंट पी को हमें लोकेट करना है तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से एक यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे ही सिमिलरली आप दूसरे डायरेक्शन में भी ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके से बना लीजिए। एक्सक्यूज मी, वेरी सॉरी, बना देता हूँ मैं। फिर आप यहाँ से एक ऐसे इधर बना दीजिए, ठीक है, और ये जो है आपका एक्स एक्सिस पे हो गया, और ऐसे ही फिर आप यहाँ से लेते हुए ये आपने जेड एक्सिस पे इसको मिला दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्फीयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर अगर ये मैंने बीच में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये अब अगर मुझे इस पॉइंट पी को यहाँ पर लोकेट करना है, ये जो पॉइंट पी है, ठीक है ना, ये पॉइंट पी को अगर मुझे लोकेट करना है, ठीक है, तो इस पॉइंट पी में दो चीज़ें होंगी। एक तो मैं इस एक्सिस को यहाँ पर ये जो मिलाऊंगा, ठीक है, ये जो लाइन जो इसको मिलाती हुई रहेगी, ठीक है ना, दिस लाइन विल हैव अ रेडियस, दिस रेडियस विल बी कॉल्ड आर। जो कैनोनिकल एंगल बनेगा, दैट कैनोनिकल एंगल विल बी कॉल्ड थीटा, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब इम्प्रेशन आप देखोगे यहाँ पर, जो इस लाइन के नाते जो यहाँ पर इम्प्रेशन बनेगा, ठीक है ना, तो दिस एंगल विल बी कॉल्ड फाई। तो इस तरीके से आर, थीटा एंड फाई तीन एंगल आपको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। आर, थीटा एंड फाई तीन एंगल आपको बनते हुए दिखेंगे, ठीक। इस तरीके से अगर आप यूनिट वेक्टर्स की बात करोगे तो ए आर के अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर जाएगा वो उसी के डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से, ठीक है ना, ये होगा आपका ए आर, ठीक है, ये आपका रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, ठीक। फिर जो आपका यहाँ पर जो आपका दूसरा जो ए फाई एंगल बनेगा, ए फाई एंगल जो बनेगा, तो ए फाई वाला जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा एक तरीके से, ये इस तरीके से ए फाई, बिकॉज उस पॉइंट पर जो आपका ये होगा आपका ए आर कैप, ठीक है ना। ए फाई कैप जो होगा वो लगभग लगभग इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो कुछ भी रेडियस बन रहा होगा उस रेडियस पर जो भी आपका कर्व बन रहा होगा उस पर इस तरीके से टेंजेंट होगा। और ए आर जो होगा, ए आर जो होगा वो ए आर जो होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ए थीटा जो होगा वो इस पर्टिकुलर कोण पर, इस पर्टिकुलर कोण पर जो है वो परपेंडिकुलर या नॉर्मल होगा। इस पर्टिकुलर कोण जो यहाँ पर बन रहा है उस पर नॉर्मल होगा ये थीटा। तो इस तरीके से ए आर, ए थीटा और ए फाई तीन यूनिट वेक्टर्स यहाँ पर आपको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो तीनों यूनिट वेक्टर बनेंगे वो किस किस डायरेक्शन में बनेंगे, इसे अगर हम लोग देखें तो ए आर जो यूनिट वेक्टर बनेगा, ए आर जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो कहाँ बनेगा, दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड बनेगा, ठीक है, दिस विल बी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। फिर आपका ए जो फाई बनेगा दैट विल बी सेम, तो वहाँ पर, ठीक है ना, टेंजेंट ऑन सर्किल, फिर वही जो वहाँ पर जो इस पॉइंट पर हम लोग रेडियली आउटवर्ड कैलकुलेट किए हैं वहीं पर अगर हम लोग क्या बना दे, टेंजेंट बना दे, तो टेंजेंट ऑन सर्किल बनेगा, ठीक है। और ए थीटा किधर बनेगा, ए थीटा जो बनेगा दैट विल बी नॉर्मल टू कोन, नॉर्मल ऑन कोन, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने देखा ये रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से जा रहा था, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ए आर था, ए आर कैप, ठीक है ना। उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ए थीटा था वो एक तरीके से इस तरीके से आप देखिए तो ए थीटा ए फाई जो होगा, ए फाई एक तरीके से ए आर जो होगा ना वो एक तरीके से आपका मैं कहूँ तो एक तरीके से जो भी आपका रेडियस बनाने वाली जो लाइन होगी जस्ट उसी डायरेक्शन में होगा। और एफ आई जो होगा ना वो एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आप एक सर्किल जो बन रहा होगा उस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप बना रहे होगे तो उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट विल बी एफ आई, ठीक है। और ये जो होगा ये आपका जो नॉर्मल जो ए थीटा होगा, अगर ए आर की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी तो ए आर चूँकि रेडियली उस कोन के रेडियस के अकॉर्डिंग बन रहा है तो ए थीटा होगा वो जस्ट इसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। और ए आर जो होगा आप समझ सकते हैं इसमें यहाँ पर डॉट की तरह से दिखा सकते हैं, डॉट मतलब इनसाइड द प्लेन होगा। अगर वो एक्स वाई एक्सिस को हम लोग देख रहे हैं तो एक्स वाई एक्सिस में अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पैरामीटर्स बेसिकली होते हैं। एक होता है आर, दैट इज आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। ए फाई होता है, ए फाई इज एजीमुथल एंगल, एंड देन आफ्टर होता है ए थीटा इज थीटा होता है दैट इज एंगल ड्यू टू कोन, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ तो ए आर विल बी इन दिस डायरेक्शन, ए थीटा ए फाई विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और ए थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ए थीटा क्या विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई भी यहाँ पर इसको बना करके दिखाया है। अब कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, जैसे कि कुछ पैरामीटर्स दे देते हैं और कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर फिर हम लोग डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये किस टाइप का जो है सिस्टम बनेगा, किस टाइप का यहाँ पर चीज़ें बनेंगी, ठीक है। अगर मैंने कहा कि ऐसा है सर कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि थीटा इज इक्वल्स टू मैंने कह दिया 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री फिक्स करते ही जो कुछ भी रहेगा दैट विल लाई सिंपली ऑन जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस मतलब कौन सा जेड एक्सिस? पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। वहीं अगर मैंने कहा कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? दैट विल बी एक्स वाई प्लेन, ओके। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर अगर आप देखिए तो एक्स वाई जेड में यहाँ पर जो कैनोनिकल एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री, और यहाँ पर अगर आप कैनोनिकल एंगल 90 डिग्री से सेट कर देते हो तो एक तरीके से ये जेड एक्सिस के 90 डिग्री में दोनों साइड से कौन सा प्लेन आएगा? दिस विल बी एक्स वाई प्लेन, ओके। सो दिस विल बी एक्स वाई प्लेन, ओके। फिर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे बताइए कौन सा प्लेन आएगा? थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे आएगा माइनस जेड एक्सिस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। फिर अगर हम लोग फाई को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ कि फाई इज इक्वल्स टू कितना, फाई इज इक्वल्स टू अगर मैं कहूँ कि ऐसा है कि फाई इज इक्वल्स टू आप फिक्स कर दीजिए 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू को आप वेरी करिए। थीटा की वैल्यू को कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करिए? थीटा की वैल्यू को आप 0 to 180 वेरी करिए। तो फाई इज इक्वल्स टू अगर आप फिक्स कर दोगे और आर की वैल्यू को भी आप वेरी करिए, आर की भी वैल्यू को आप वेरी करिए कहाँ से? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो बताइए कैसा प्लेन बनेगा? तो थीटा फाई इज इक्वल्स टू 0 होने पर ये केवल और केवल एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। लेकिन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री चेंज करने के नाते ये एक्स जेड वाले पॉजिटिव में भी जाएगा और निगेटिव में भी जाएगा, मतलब जो कुछ भी है। और आर की वैल्यू जो कि चेंज हो रही है तो एक्स जेड प्लेन को ये रिप्रेजेंट करेगा, एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना, एक्स जेड प्लेन को ये कंडीशन रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। उसी तरीके से अगर हमने कहा कि ऐसा है कि आर की वैल्यू को हमने क्या कंसिडर कर लिया? आर की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया, कितना? 1 फिक्स कर दिया, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया 0 to 90 डिग्री फिक्स कर दिया, ठीक है ना। और फाई की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं 0 to 2 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, आर इज इक्वल्स टू 1, थीटा इज इक्वल्स टू 0 to 90 एंड फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई जब हम लोग वेरी कर रहे हैं, तो आर इज इक्वल्स टू 1 मतलब रेडियस तो 1 हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। तो इस तरीके से रेडियस 1 होने के नाते फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई हम लोग एक प्लेट बना लेंगे, लेकिन ये प्लेट के साथ साथ जो एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 to 90 वेरी करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी बनेगा वो कैसा बनेगा? दैट विल बी अ हेमिस्फीयर।
हेमिस्फीयर अबव द प्लेन, हेमिस्फीयर अबव द प्लेन। ये किसको बनाएगा? दैट विल बी कॉलिंग हेमिस्फीयर अबव प्लेन, अबव प्लेन। बिकॉज आप देखिए जो प्लेट बन गई वो जेड इक्वल टू 0 से लेकर के 180 तक वेरी करेगी, तो इस तरीके से। और ये प्लेट आप कोई भी प्लेट ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पर r इक्वल टू 1 से यहाँ पर एक प्लेट बन जाएगी, r इक्वल टू 1 और फाई इक्वल टू 0 to 2 पाई से एक प्लेट बन जाएगी। अब उस प्लेट को आप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जो रोटेट करेंगे, आप जब एक प्लेट जो बन गई इन दोनों के जरिए, इसके और इसके जरिए आपको एक प्लेट मिलेगी एक्स वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। और जो प्लेट मिलेगी उसका रेडियस क्या होगा? 1 होगा। अब उस प्लेट को जब आप रोटेट करोगे पूरा का पूरा, मान लीजिए इस तरीके से गोल सर्किल से प्लेट मिल गई, ठीक है ना। अब आप इसे क्या करिए? 90 डिग्री तक रोटेट करिए। तो जब रोटेट करोगे तो एक तरीके से आपको क्या मिलेगा? एक तरीके से ये इस तरीके से हेमिस्फीयर एक तरीके से मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से आपको एक तरीके से ये हेमिस्फीयर मिलता हुआ दिखेगा। और वो भी कहाँ मिलता हुआ दिखेगा? वो भी आपको एक्स वाई एक्सिस से ऊपर जेड एक्सिस मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि r इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है ना, और थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं? 90 to 180 वेरी कर रहे हैं, 90 to 180 वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना। और फाई इज इक्वल्स टू हम लोग कहाँ पर वेरी कर रहे हैं? फाई इज इक्वल्स टू फिर से हम लोग 0 से 2 पाई वेरी कर रहे हैं। तो इस केस में जो हेमिस्फीयर मिलेगा आपको नीचे की तरफ बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ओके, फिर उसी तरीके से अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि फाई की वैल्यू को हमने क्या किया? फाई की वैल्यू को हमने 90 डिग्री फिक्स कर दिया, ओके। फाई की वैल्यू को हमने 90 डिग्री फिक्स कर दिया और आर की वैल्यू को हमने क्या किया? आर की वैल्यू को 1 फिक्स कर दिया। अब थीटा की वैल्यू को हम लोग 0 से लेकर के 180 तक चेंज कर रहे हैं। तो बताइए क्या बनेगा, ठीक है ना। आर इज इक्वल्स टू 1 है और फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फिक्स कर दिया है। तो आर इज इक्वल्स टू 1 एंड फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एक्स वाई एक्सेस में ये आर इज इक्वल्स टू 1 और फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप थीटा इज इक्वल्स टू 180 अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक तरीके से सर्किल को बनाएगा, एक प्लेट बनाएगा, ठीक है ना। ये प्लेट बनाएगा और ये प्लेट किस डायरेक्शन में होगी? ये प्लेट होगी वाई जेड एक्सेस में होगी। दैट विल बी प्लेट ऑफ रेडियस 1 इन वाई जेड एक्सेस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। प्लेट ऑन वाई जेड एक्सेस, प्लेट ऑन वाई जेड एक्सेस when x इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आप ढेर सारी एनालिसिस कर सकते हो और ढेर सारे प्लेन्स को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं इसको देखते हैं। किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसका किसका आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका क्या रिलेशनशिप था, हम लोगों ने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ देखा। और अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या रिलेशनशिप हो सकता है, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये देखिए एक तरीके से डायग्राम बनाया गया हुआ, ये आर है, आर इज रिप्रेजेंटिंग रेडियस एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये थीटा क्या है? दैट इज पोलर एंगल। सो एंड दिस इज फाई। तो ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पर जो डिफाइन करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमें जो अगर हमें रो के टर्म्स में रिलेशनशिप चाहिए तो रो जो होता है वो जेड एक्सिस से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब इस वाले एक्सिस से आपका रिलेशन होता है, ठीक। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट का इंप्रेशन जाना चाहते हैं एक्स वाई प्लेन पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का इंप्रेशन एक्स वाई प्लेन पे लेने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा क्या? आर कॉस थीटा होगा और एक साइन आर साइन थीटा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा, दिस विल बी आर कॉस थीटा, ये आपका आर कॉस थीटा होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी आर साइन थीटा, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये आपका आर साइन थीटा होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो आर साइन थीटा होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग रेडियस, ओके। तो इसको आप क्या कर सकते हो? रो कर सकते हो, ठीक। सो दिस विल बी रो। तो रो इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो, रो इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो आर साइन थीटा, ओके। रो इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कह दिया आपने। अच्छा, जेड इज इक्वल्स टू आप क्या कर सकते हैं? जेड इज इक्वल्स टू आप क्या कर सकते हैं? जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा,
जैसा कि यहाँ पर अभी आपको मैंने दिखाया कि जेड इज इक्वल्स टू जेड एक्सिस पे क्या हो गया आर कॉस थीटा। अच्छा, अब ये अगर आप फाई के टर्म्स में रिलेशनशिप चाहते हो तो फाई के टर्म्स में आप रिलेशनशिप चाहते हो तो आप जानते हो फाई, ये जो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू होता है रो कॉस फाई, एक्स इज इक्वल्स टू होता है रो कॉस फाई। रो कॉस फाई मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई। ओके, और अगर आप यहाँ पर y इज इक्वल्स टू चाहते हो तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो साइन फाई, लेकिन रो साइन फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक, तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप यहाँ पर होल्ड कर सकती है। अच्छा, अगर आप r की वैल्यू को चाहते हो कि r की वैल्यू क्या होगी तो r इज इक्वल्स टू आप कैसे गेट कर सकते हो, r की वैल्यू को आप गेट कर सकते हैं कि r की वैल्यू को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे सर, रो और z, ये देखिए क्या है, दिस इज रो एंड दिस इज z। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो आप रो और रो इज इक्वल्स टू बताइए क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू होता है, रो इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, आर इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, आर इज इक्वल्स टू हो सकता है, देखिए ये रो है और ये जेड है, तो रो और जेड से आपको रिजल्टेंट मान रहा है, तो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आप आर इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, आर इज इक्वल्स टू कर सकते हो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना हुआ तो थीटा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, ये वाले ट्रायंगल से tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू आप कैलकुलेट कर सकते हो tan इनवर्स ऑफ व्हाट, दैट इज रो बाई जेड, रो बाई जेड, दैट विल गिव यू थीटा। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रो बाई जेड एंड फाई इज इक्वल्स टू आप क्या वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फाई इज इक्वल्स टू फिर वही अंडर रूट ऑफ tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ओके, सो आप इस तरीके से tan इनवर्स ऑफ वाई दैट इज वाई एंड दिस इज एक्स, सो tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स से आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी रिलेशनशिप है जो कि रो थीटा फाई का, सॉरी आर थीटा फाई का रो फाई जेड और एक्स वाई जेड कन्वर्जन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं और वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हुए अगर आप कन्वर्जन चाहते हैं किसका, अगर आप कन्वर्जन चाहते हैं कि ऐसा है कि हमारा जो ये जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो आपको दिख रहा है वेक्टर में, यहाँ पर जो भी वेक्टर में कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है आपको, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है का है, और अगर आप इसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिलेंड्रिकल वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फाई, थीटा और ए आर, ठीक है, तीन कंपोनेंट्स हैं आपके पास। ठीक, वहाँ पर जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वहाँ पर जो कंपोनेंट होते हैं आपका होता है ए रो। ठीक, आपके पास जो कंपोनेंट होता है वो होता है ए रो और ए फाई एंड ए जेड, तीन कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं, ए रो, ए फाई एंड ए जेड। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं कि ये जो ए आर वाली डायरेक्शन होगी, ये जो ए आर वाली डायरेक्शन होगी, तो ए आर वाला जो वेक्टर होगा, ठीक है ना, एक तरीके से दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है। ठीक है ना, ए आर वाला ये जो वेक्टर होगा वो दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है। कौन कौन सा, ए आर कैप जो ब्रेक होगा वो होगा आपका ए आर वाला जो वेक्टर होगा दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है। ठीक, ये जो ए आर कैप आपका वेक्टर होगा, ठीक, ये आपका ब्रेक होगा दो पार्ट में। ठीक, एक जो होगा आपका यहाँ पर अपवर्ड, ठीक है, ए आर
कैप कॉस थीटा, ठीक है, और एक होगा जो इस प्लेन में ब्रेक होगा, ठीक, इस प्लेन में ब्रेक होगा, एक्स वाई प्लेन में ब्रेक होगा, ठीक, एक्स वाई प्लेन में ब्रेक होगा, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में जो ब्रेक होगा दैट विल बी ए आर कैप साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला, और आपका जो ए थीटा वाला होगा, ए थीटा वाला, तो ए थीटा वाले को देखिए, आपका यहाँ पर जो एंगल होगा दैट विल बी अगेन थीटा, ये जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा, सो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, ओके, सो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ए थीटा वाला जो वेक्टर होगा, ठीक, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। तो इसको भी अगर आप चाहेंगे ब्रेक करना तो एक तरीके से वो क्या होगा कि एक तरीके से अगर आप देखिए तो इस तरीके से अगर आप इसे दो पार्ट में ब्रेक करना चाहिए तो एक जो होगा एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक जो है वो इसी एक्स वाई प्लेन में जाएगा और एक ए जेड प्लेन में जाएगा, ठीक है। तो ए आर वाला भी आपका एक जो है वो एक्स वाई प्लेन में आएगा और एक जो है वो ए जेड प्लेन में जाएगा। तो ये वाला जो है आपका जेड एक्सिस, जेड वाले एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेड वाले एक्सिस में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो जेड वाले एक्सिस में जाएगा ये, सॉरी दिस वन इज ए थीटा, नॉट ए आर, दिस इज ए थीटा। तो ए थीटा वाला जो है, ठीक है, ये यहाँ पर थीटा होगा, दिस विल बी थीटा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो होगा दिस विल बी ए थीटा, ये बताइए क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा की जगह बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट इट विल बिकम, कॉस थीटा, ठीक है, या साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। और ये वाला कंपोनेंट बताइए क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्सिस में जो होगा दैट विल बिकम ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जेड वाले एक्सिस में ये जो कंपोनेंट आ रहा है, अगर हम इसे जेड एक्सिस मान लें तो जेड एक्सिस में जो कंपोनेंट आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, जेड एक्सिस में जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज़ ए आर कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ए थीटा साइन थीटा, ठीक, इस तरीके से आ गया। और ये जो एक्स वाई प्लेन में जो कंपोनेंट आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में जो कंपोनेंट आ रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में जो कंपोनेंट आ रहा है वो बताइए कौन सा आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में सेम डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है ए आर कॉस थी, ए आर साइन थीटा, ए आर साइन थीटा, ठीक है, और फिर प्लस ए थीटा कॉस थीटा, ठीक। तो ये किधर आ रहा है, दिस इज कमिंग इन जेड डायरेक्शन एंड दिस इज कमिंग इन विच डायरेक्शन, ए रो डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग और रो वाली डायरेक्शन, फाइव वाली डायरेक्शन तो एज इट इज़ होगी, फाइव वाली डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ए आर, ए थीटा, ए फाई को रिप्रेजेंट करना चाहें, किस में हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, ए रो, ए फाई एंड ए जेड में, ठीक है। तो आप देखिए ए रो वाली डायरेक्शन के लिए देखिए क्या है, रो वाली डायरेक्शन के लिए है ए आर साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, और फाई वाले डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है इसका, ए आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक। ऐसे अगर आप फाई वाले डायरेक्शन में कैलकुलेट करना चाहिए तो फाई वाले डायरेक्शन में देखिए क्या होगा, फाई वाले डायरेक्शन में आपका आ जाएगा
फाई वाले के लिए कुछ भी नहीं है बिकॉज सेम है यहाँ पर जो कुछ भी है, ठीक है। तो AR 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। और जेड वाले डायरेक्शन में देखिए, जेड वाले डायरेक्शन में AR cos थीटा, तो यहाँ पर AR cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स जो है वो हमें रिलेशनशिप दे रही है किसके किसके बीच में, A रो A फाई AZ एंड AR A थीटा एंड A फाई के बीच में, ठीक है। तो आप देखिए सेम मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन की हुई है दैट इज सेम, ठीक, ओके। अब अगर आप इसका इन्वर्स निकालना चाहिए तो इन्वर्स निकाल करके फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो इन्वर्स निकालने के लिए फिर आप क्या करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज करेंगे सिंपली, ठीक है, और ट्रांसपोज करके फिर कोफैक्टर निकालेंगे। तो उस तरीके से आपका जो भी होगा वो आ जाएगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने मैट्रिक्स देखी A रो A फाई एंड AZ, ये जो है आपका, अगर ये हमने कहा कि ऐसा है, ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या गेट कर सकते हैं, AR A थीटा A फाई गेट कर सकते हैं, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पर AR A थीटा A फाई अगर हम लोग गेट करना चाहें तो AR A थीटा A फाई अगर हम लोग ये सारी चीज़ें गेट करना चाहें, ठीक है ना, AR A थीटा A फाई अगर हम लोग गेट करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा, AR A थीटा फाई में यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, किससे, A रो A फाई एंड AZ से, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते टाइम अगर आप देखिए तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई साइन इंटू जीरो माइनस साइन, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स होता है तो आप इसका सिंपली ट्रांसपोज से गेट कर सकते हो। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है, 0 एंड कॉस थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। फिर ऐसे ही अगर आप यहाँ पर करोगे तो दूसरे वाले का कॉस थीटा 0 एंड माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप देखोगे कॉस थीटा, ठीक, माइनस साइन थीटा एंड 0, इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से हम कोई भी जो भी हमें दिया हुआ है, चाहे वो आपको मान लीजिए सिलेंड्रिकल में दिया, स्फेरिकल में दिया हुआ है, आपको सिलेंड्रिकल में निकालना है तो इस मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्फेरिकल में निकालना है और सिलेंड्रिकल में दिया हुआ है तो आप इस मैट्रिक्स का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर आप इसको वापस, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं AX AY AZ में, तो फिर आपके पास ऑलरेडी A रो को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं AX AY AZ में, इसका भी ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है। तो आप जो उसका मैट्रिक्स अगर आप देखोगे तो आप A रो को आप AX AY AZ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका जो आपको फार्मूलेशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। A रो इज इक्वल्स टू, आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, A रो इज इक्वल्स टू A रो A फाई AZ, A रो A फाई AZ इज इक्वल्स टू कॉस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1, इस तरीके से आप फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कॉस फाई 0, इस तरीके का मैट्रिक्स अगर हम लोग यहाँ पर फिर से लिख लें, ठीक है, इस तरीके का मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर फिर से लिख लें,
जस्ट अ सेकेंड। अब इस मैट्रिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक, इस मैट्रिक्स को मैंने यहाँ ले आया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका ए रो एफ आई ए जेड ये वाला जो है, इसमें हम लोग अब ये इसकी जगह हम लोग ये पुट कर देंगे, ठीक। तो अब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा उसके बाद, तो इससे पहले देखिए क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 1 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड 0, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर कॉस फाई साइन फाई 0 कॉस फाई साइन फाई 0, फिर साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1 और बीच में यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन फाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होता है बीच में, ओके। और ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ए एक्स ए वाई एंड ए जेड को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ भी होगा दैट विल बी ए आर ए थीटा एंड ए पाई। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, क्या आता है देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0, ठीक। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल रिजल्ट साइन थीटा कॉस फाई, ओके। फिर आप देखोगे ना कि जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स, साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, ठीक। इस तरीके से ये मैट्रिक्स आपको फाइनली नोट किया, जबकि ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से आप फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये मैट्रिक्स गेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग वेक्टर मैनिपुलेशन से देखें, ये जो वेक्टर मैनिपुलेशन वाला मेथड था, अगर हम लोग इससे देखें तो अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर इसे कन्वर्जन किया है, ठीक है ना, तो जेड एक्सेस में तो जो कन्वर्जन किया है वो एज इट इज़ है, ठीक है ना। तो जेड एक्सेस का कन्वर्जन तो एज इट इज़ रहेगा, ए जेड इज इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा एंड ए थीटा साइन फाई, ठीक है ना। ये जो हमने रो एक्सेस पे जो कन्वर्जन किया हुआ है, ठीक, तो रो एक्सेस पर जो कन्वर्जन किया हुआ है ये एक तरीके से ए आर साइन थीटा और ए थीटा कॉस फाई है, ठीक है। तो अब ये जो ए आर साइन थीटा जो आपका आया हुआ है, ठीक है, ए आर साइन थीटा जो आया हुआ है, ठीक, तो ये ए आर साइन थीटा जो होगा, वो जो ए आर साइन थीटा होगा उसका जो ये कंपोनेंट होगा वो यहाँ कहीं इस डायरेक्शन में लाई करेगा, ठीक। तो अब इसका अगर आप एक्स एक्सिस के तरफ ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर साइन थीटा, ठीक है, जो कि एक्स वाई प्लेन में आए, ए आर साइन थीटा कॉस फाई इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, ए आर साइन थीटा कॉस फाई इधर की तरफ जाएगा और ए आर साइन थीटा साइन फाई ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। फिर आपका ये जो ए फाई वाला कंपोनेंट तो उसी डायरेक्शन में है, ठीक, ए फाई वाला कंपोनेंट तो उसी डायरेक्शन में है। तो ए फाई वाला जो कंपोनेंट होगा वो चूंकि उसी डायरेक्शन में है, ठीक, तो इस तरीके से ये इसी डायरेक्शन में है, तो ए फाई वाला कंपोनेंट एक तरीके से यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है, समझिएगा, इस तरीके से यहाँ पर होगा, ठीक, इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, ठीक, जस्ट परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल यहाँ पर
ये जो इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, ठीक है, और जो इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा एक्स वाले डायरेक्शन में, तो एक तरीके से अगर ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे ए फाई वाला होगा, ठीक, तो दो डायरेक्शनों में एंगल बनेगा, ठीक है, ये फाई हो गया, ठीक। तो एक तरीके से अगर आप समझिए तो ये अगर इसे भी हमें एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक करना हुआ तो एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक करते टाइम हमें देखना होगा कि कौन सा एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक। तो अगर ये फाई है तो ये फाई होगा, ठीक है, तो ये फाई होगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए फाई कॉस फाई, तो इसमें आएगा ए फाई कॉस फाई आएगा, और इस वाले डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा ए फाई साइन फाई आएगा, लेकिन निगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ए फाई कॉस फाई इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा, और इस वाले डायरेक्शन में जो आ जाएगा वो ए फाई साइन फाई निगेटिव डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ए थीटा वाला जो कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा होगा, ए थीटा वाला कंपोनेंट देखिए क्या आ रहा है, ए थीटा कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो ए थीटा वाला भी कंपोनेंट ऐसे आ रहा होगा, ठीक। तो ए थीटा वाला भी जो कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो फिर उसका भी कॉस कंपोनेंट जो है वो इधर की तरफ आएगा, और साइन कंपोनेंट जो है वो इधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ए थीटा कॉस थीटा साइन फाई, और ए थीटा कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक। तो इस तरीके से आप एक्स वाले में देखेंगे तो ए आर का जो कंपोनेंट होगा साइन थीटा कॉस फाई आएगा, यहाँ पर माइनस साइन फाई आएगा, फिर कॉस थीटा कॉस फाई आएगा। तो अगर आप इस तरीके से देखिए एक्स वाई जेड में साइन थीटा कॉस फाई आ रहा है, फाई वाले का माइनस साइन फाई आ रहा है, और कॉस थीटा कॉस फाई आ रहा है, ठीक है। ये देखिए माइनस साइन फाई आ रहा है और कॉस थीटा कॉस फाई आ रहा है, ठीक। सिमिलरली अगर आप वाई वाले डायरेक्शन को देखिए, तो वाई वाले डायरेक्शन में देखिए क्या आ रहा है, साइन थीटा साइन फाई, फिर कॉस फाई एंड कॉस थीटा साइन फाई। तो साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस फाई एंड कॉस थीटा साइन फाई, और कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा ये पहले से आ रहा था। तो इस तरीके से ये आप मैट्रिक्स है, आप इसे मेमोराइज कर सकते हो, एंड बाय द हेल्प ऑफ इट हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। तो इस मैट्रिक्स का यूज़ करके हम लोग इन मैट्रिक्सेस का यूज़ करके हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें केवल ए एक्स का एक कंपोनेंट अवेलेबल है। ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स जेड बाई वाई, ओके। ए एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स जेड बाई वाई, ओके। तो यहाँ पर जो भी सारे के सारे पैरामीटर्स हैं आपको उसे कन्वर्ट करना होगा किस में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप x को लिखना चाहोगे तो x को बताइए आप क्या लिखोगे, x को आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर देखिए x इक्वल्स टू लिखोगे r साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल्स टू लिखोगे r साइन थीटा साइन फाई, एंड z इक्वल्स टू लिखोगे r कॉस थीटा। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ आप पुट करोगे, ठीक है ना। फिर ये जो मैट्रिक्स आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए आप सॉल्व करोगे, और फिर ए आर ए थीटा एंड ए फाई तीनों के तीनों कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। आप इसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सलूशन आ सकता है।